Hello guys, welcome back to my channel. So I am not at all active right now in YouTube and as well as Instagram because I'm very busy with my whole schedule in the hostel. So I thought of making this video just to do a question answer round kind of thing, which are the most common doubts among the firstly let's go with the part where I went from Navi Mumbai to Vellore. I took a train for that, and that was Nagarkoil Express, and it was like almost 21 hours of the travel. And after landing into the Vellore station, I booked a taxi. The number of the taxi driver I'll give in the description box. There is also local taxis and auto service available in Vellore, which you can also do, which is very affordable, and it's about 250 rupees in normal cabs and 150 rupees in the auto. So do not get cheated with the local taxi drivers. And after that we went to Prabhu Apartments. So there was a whole lot chaos before booking the hotel etc to stay in Vellore. We booked Oyo but it cancelled, so after a lot of chaos we went to Prabhu Apartments, which I got from internet, and we have to pay their like in WhatsApp. But the thing is that in WhatsApp it was very risky, but thankfully we went there, and you can see the photographs I'm attaching. And yeah, the room was very clean and the prices were like 1500 per day, and it was 2 BHK, and there are many apartments near that. So I'll give the Prabhu apartment owner number there. If you are willing to visit Vellore and want to stay there, you can afford the rooms very easily, and you can get the rooms very easily, and he can also provide you with other apartment owners number. Move on to the further part where I went to the hostel. So what are the things we need to carry while the first day at hostel? So for the hostel booking is done in the online the online platform, the VTop of VIT. So the first thing we have to carry, what we did was, after we went inside the campus, it is a whole large campus, so there are many guards to help. There are also shuttle services available. Also you can book any local auto and say them to go to the F block or the E block or any of the block which is mentioned in your hostel booking registration, the profile. So you can directly say them go to the F block and they will drop near the F block gate. You can go inside. So the for registration your parents are no more needed. Documents you need to carry for registration of hostel is that the affidavit, the hostel affidavit, and the student's profile. Also along with that, vaccination certificate. That's it. That's the only thing you have to carry. And also bring Aadhaar card with yourself. The other all documents you need to submit in the Anna auditorium. It will be there in the mail when you have to submit and what all. And also your parents are only needed when you need to apply for leave. So the leave application is very easy. If you are willing to stay with your parents, like तुम लोग आ गए एंड तुम लोगों ने लाइक हॉस्टल रजिस्ट्रेशन कर दिया, बट तुम्हें थोड़े दिन बाहर रहना है, पेरेंट्स के साथ घूमना है या वट एवर इट इज़, एंड बाद में तुम्हें हॉस्टल में शिफ्ट होना है. सो देर इज़ अ प्रोसेस ऑफ लीव. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉप पे लाई वी टॉप पे, एंड देन वहाँ पे जो वार्डन होंगी वहाँ से उनके पास एक स्लिप मिलता है लीव का. उनको बोल के वो स्लिप लेना है, देन उनको फिल करना है एज पर द वी टॉप, जैसे तुमने वी टॉप फिल किया. एंड देन दे विल कॉल योर पेरेंट्स टू वेरीफाई दैट हाँ तुम्हें लीव चाहिए. एंड देन उसके बाद योर लीव इज़ अप्रूव, दे विल डू अ स्टैम्प थिंग एंड योर लीव इज़ अप्रूव. यू कैन स्टे विद योर पेरेंट्स. और अगर तुम उसके पहले भी आना चाहते हो तो यू हैव टू कम. बस बोल देना कि देखो मैं लीव में थी, आई जस्ट केम एक्सेट्रा, एंड तुम आ जाना. लीव इज़ वेरी ईजी टू अप्लाई. ऑल्सो इफ़ यू वांट तुम डायरेक्टली सूटकेसेस लेके शिफ्ट हो सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट कि पहले जाओ एंड डू द रजिस्ट्रेशन थिंग, गो एंड सी योर रूम एंड देन गो आउट. यू कैन मूव आउट ईजिली, वेरी ईजिली वाइल द रजिस्ट्रेशन थिंग. ऐसा कुछ नहीं है कि तुम बाहर नहीं जा सकते, तुम्हें परमिशन लेना पड़ेगा. यू कैन मूव आउट ईजिली बाई द मैट्रेसेस एक्सेट्रा. Also, for your kindest information, the mattresses are available very near to the hostel block and कुछ ज़्यादा प्राइस नहीं है. 500 to 200 रुपीज़ ज़्यादा है, एंड अंदर सब कुछ अवेलेबल है. सब कुछ फ्रॉम मेडिसिन टू ईटरी टू घर के सामान लाइक बाल्टी एंड ऑल, द बकेट्स एंड ऑल, एंड ऑल्सो
the mattresses, pillow cover, bedsheet, everything is available. And also VIT से main gate से निकल के या gate 2 से निकल के you can go to the Allmart, विच यू कैन गो विद एनी लोकल ऑटो वाला. सो वहाँ पे भी सब कुछ अवेलेबल है एंड अंदर का कॉस्ट एंड वहाँ का कॉस्ट सेम है. देन द सेकेंड क्वेश्चन अराइजेस, द थर्ड क्वेश्चन अराइजेस इज कि चाबी का क्या करना है, व्हाट अबाउट द कीज़. सो इफ़ यू आर द फर्स्ट वन टू कम टू द room, the warden will tell you to buy a key which is also available in front of the block. So mine is F block. So it was available. Our parents allowed inside, like mom or behan or etc. So to be honest, they are not allowed inside. Go inside and you can tell any of the akkas, like the there are many aunties there, the worker aunties called as akka. So you can tell any of them to help. उनके पास जैसे एयरपोर्ट में ऐसी ट्रॉलीज होते. मैंने अपना पूरा रूम एक दिन में सेट कर लिया बिकॉज मेरा एग्ज़ाम्स 1 वीक में था. सो मुझे टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना था. द क्वेश्चन माइट बी कि मेस का क्या प्रोसीजर है, हाउ टू रजिस्टर फॉर द मेस. सो तुमको तो पता ही होगा तुम्हारा मेस कौन सा है. आस्क एनी ऑफ द अक्का एंड गो टू योर मेस कि तुम्हारा मेस कहाँ पे. लाइक आई एम इन द डार्लिंग मेस. तो मेरा मेस एफ ब्लॉक के सेकंड फ्लोर पे मेरा मेस है. सो मैं सेकंड फ्लोर में चली जाती हूँ. द शक्ति मेस इन द फर्स्ट फ्लोर एंड द नीलिकेश मेस इज़ थोड़ा दूर. तो ऐसे डिफरेंट मेसेस है. तो हम वहाँ पे जाना है, हमें वहाँ पे अपने 2 फोटोग्राफ्स लेके जाना है और एक पेन लेके जाना ऑफ कोर्स. तो वो लोग हमारा रजिस्ट्रेशन कर देंगे फर्स्ट डे ऑफ, जिस दिन मुझे खाना है, जिस दिन मैं आ गई कैंपस में उसी दिन से मेरा मेस का फूड चालू हो जाता है. इट इज़ मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, देन लंच, देन स्नैक्स एंड देन डिनर. सो टू बी ऑनेस्ट मुझे मेस का खाना पसंद आया है. देर आर मैनी पीपल हु डोंट लाइक द मेस फूड, बट अकॉर्डिंग टू मी मेस का खाना बहुत अच्छा है एज़ कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस. और द डिफरेंस ऑफ मेस बिटवीन स्पेशल एंड नॉर्मल नॉन वेज मेस, तो जूस एंड सूप एंड कॉर्नफ्लेक्स वो सब तुम्हें एक्स्ट्रा मिलता है. अबाउट द अटेंडेंस प्रोसेस, तो एवरी डे 8:30 को हमें नीचे जाना पड़ता है. एंड फर्स्ट फ्यू डेज वी हैड टू डू द सिग्नेचर थिंग. बहुत ही ज़्यादा भीड़ होता था बट इट्स ओके. अब इतने सारे लोग हैं, बहुत भीड़ होता था. हम ऐसे लोकल ट्रेन जैसे लड़के सिग्नेचर देते थे बट इट्स ओके. देन उसके बाद जब हमारा बायोमेट्रिक हुआ थोड़े टाइम बाद, देन वी आर गिव बायोमेट्रिक. सो इट्स फ्रॉम 8:30 to 9:30. सो तुम्हारे पास 1 घंटा है. तुम्हें से गर्दी में जाके लोकल ट्रेन से झगड़ के लेने की कोई ज़रूरत नहीं. यू कैन गो आराम से बाद में एंड गिव. एंड सपोज इफ़ यू मिस अटेंडेंस बाय चांस, तो तुम्हें कॉल आएगा वार्डन से कि भाई तुमने मिस कर दिया, तुम आके अटेंडेंस तो कहा जाए, थोड़ी सी डांट पड़ेगी बट यू कैन से सॉरी एंड जस्ट रहता है तुम्हारा मेस का. वो तुम्हें मेस में ही रखना है. सो तुम इन द स्टार्टिंग ऑफ द मेस देयर आर मेनी बॉक्सेस अकॉर्डिंग टू योर रूम नंबर्स. वहाँ से तुम्हें अपना कार्ड पिकअप करना है, जाना है, कार्ड सबमिट करना है, प्लेट लेना है, खाना जो भी है तुम्हें खाना है, खा के तुम्हें वो खाने को फेंकना है. द प्लेट शुड बी केप्ट असाइड एंड खाना अलग जगह पे फेंकना है. एंड उसके बाद कार्ड तुम्हारा वही रहेगा, तुम्हें कार्ड वापस से लेके नहीं आना है. देन तुम्हें रूम चले जाना है, नेक्स्ट दिन वापस आना है, वापस से कार्ड उठाना है, खाना लेना है, खाना फेंकना है, जाना है. दैट्स द प्रोसीजर, द होल प्रोसीजर. अगर तुमने गलती से कोई मील मिस किया, जैसे मैंने लंच मिस कर दिया, तो जब मैं नेक्स्ट डिनर के लिए आऊँगी मेरा कार्ड उस जगह पे नहीं रहेगा, वो हमारे जो मेन मेस की जो रहेगी जिसको हम सबमिट करते हैं उनके पास रहेगा. तो गो एंड चेक देयर कि तुम्हारा कार्ड नहीं है तो तुम्हारा कार्ड वहाँ पे हो सकता है. एंड देन अबाउट दी क्लासेस एंड ऑल, सीरियसली मेरे को रोज का ऑलमोस्ट 10,000 to 20,000 स्टेप्स चलना पड़ता है. इफ़ यू वांट टू हैंग आउट एंड एक्सेट्रा 20,000 ईजीली हो जाता है. स्टार्टिंग डेज में बहुत पैर दुखता था एंड इट्स लाइक 4 hours ऑफ स्लीप, उससे ज़्यादा नहीं मिलता था तो थोड़ा हेडेक होता था एक्सेट्रा. बट आई एम गेटिंग यूज टू इट. एंड प्लीज़ टेक कंफर्टेबल शूज़ विथ यू, वेयर सॉक्स विथ दैट, नहीं तो पैर पे ब्लिस्टर्स जैसे मुझे भी हो रखे हैं वैसा हो जाएगा. सो द प्रॉब्लम इज़ कि हमें वी हैव टू गो फ्रॉम द हॉस्टल ब्लॉक टू फर्स्ट अ डिफरेंट टावर, देन फ्रॉम देयर टू अ डिफरेंट टावर. देर आर शटल्स बट वो 15 रुपीज़ लेता है फ्रॉम एनी वेयर इन द कैंपस टू एनी वेयर. So I can't spend so much on that. Cycles भी है, you can buy cycles. Many of my friends bought it, but walking is better क्योंकि फिर साइकिल्स पड़े रह जाएंगे एंड यू डोंट यूज़ देम. सो यही एक प्रॉब्लम है कि इट्स अ ह्यूज कैंपस, सो देर इज़ अ लॉट ऑफ वॉकिंग फ्रॉम ईच ब्लॉक टू. तो ब्लॉक थोड़ा चूज़ करके लेना. एफ ब्लॉक से SJT और टी ब्लॉक, डी ब्लॉक से PRP TT SJT पास है, बाकी सब कुछ दूर है. एंड लाइब्रेरी भी दूर है, मेन गेट भी दूर है, सो MGR ब्लॉक वगैरह भी दूर है. सो अवॉइड टेकिंग देम
अगर तुम इस साइड के नॉन अपार्टमेंट टाइप्स मिलता है तुम्हें, तो गो विथ PRP, SJT एंड TT। और अगर अपार्टमेंट टाइप मिलता है तो यू कैन गो विथ द अदर उधर साइड वाले ब्लॉक्स, अपार्ट फ्रॉम दीज ब्लॉक्स। नहीं तो तुम्हें कैब शटल यूज़ करना है तो नॉट कैब, जस्ट शटल यूज़ करना है तो कर सकते हो। AC शटल्स होते, 15 रुपीज़ दे टेक फ्रॉम एनीवेयर टू एनीवेयर। now going up ahead to the ID कार्ड प्रोसेस। सो हमारे 2-3-4 दिन बाद ऐसा आया कि मेल में सब कुछ आ जाता है, मेल में दैट वी हैव टू रजिस्टर फॉर द ID कार्ड, वी हैव टू गो टू द CS हॉल। कुछ नहीं लेके जाना है अपने साथ, जस्ट जाना है, अच्छे से सज धज के, फ़ोटो आएगा एंड देन डन। फिर उसका फिर से मेल आएगा फ्रॉम वेयर यू हैव टू कलेक्ट योर ID कार्ड एंड देन यू हैव टू कलेक्ट योर ID कार्ड। फिर you can use your ID card for the biometric process in life. How can we access to the library? It's nothing. You have to go to the library and do the fingerprint or biometric by ID card and go inside. What about the night library process? So for boys it is just कि तुम्हें पंच करा के चले जाना ID कार्ड से, उनका कुछ नहीं है वैसा प्रोसीजर। फॉर गर्ल्स इट इज़ तुम्हें कैब शटल में जाना है, शटल में वापस आना है। इट्स फ्री शटल फॉर गर्ल्स। रात को नाइट लाइब्रेरी जाना होगा तो आफ्टर एनरोलमेंट ऑफ योर ID कार्ड यू कैन गो, आस्क योर वार्डन कि हाँ अलाउड है कि नहीं है, एंड देन जस्ट गो। बट तुम्हें शटल में जाना है, शटल में वापस आना है। इफ़ यू डोंट दे विल नॉट अलाउ टू कम इनसाइड दी हॉस्टल ब्लॉक। पूरे कैंपस में देर आर ओनली 2 places to chill, which is the foodies, the open space to sit with your friend, chat, do birthday parties etc, cakes वगैरह बहुत काटे जाते हैं वहाँ पे। and the second place is library to chill, hang out, study etc. Other than that there are the in the weekdays there are TT, like the academic blocks also, there are open classrooms so you can go and study there as well. कुछ कुछ ग्राउंड्स में कभी कभी बैठना अलाउ नहीं होता, द गार्ड कम्स एंड शाउट्स एंड जाओ जाओ जाओ। सो ऐसा है। इफ़ यू वांट टू ऑर्डर फ्रॉम ऑनलाइन देयर इज़ अ अमेज़ॉन ड्रॉप सेंटर। तो ये प्रोसेस में आपको लिखना पड़ेगा एंड देन वो अमेज़ॉन ड्रॉप सेंटर में कोई भी, नॉट ओनली अमेज़ॉन, मैंत्रा, छोटा मोटा मीशो, समथिंग्स, कोई भी जहाँ से भी आपको ऑर्डर करना है वो वहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा। यू कैन गो देयर वंस इट इज़ डिलीवर्ड and you can find your order by saying your phone number to them. That's it. And after that what about Swiggy, Zomato? So after the main gate तक तो शटल जाता है, उसके थोड़े से वॉक करने के बाद द गेट 1A आता है जस्ट उसके साइड में, तो वहाँ पे स्विगी जोमेटो के सारे डिलीवरीज। अपार्ट फ्रॉम दैट यही मैंने अब तक एक्सपीरियंस किया है। बाकी क्लासेस वगैरह तो नॉन AC है एंड सीट्स कुशन सीट्स है एंड द कंप्यूटर क्लास इज़ CS क्लास इज़ AC, द गैलरी टाइप रूम है वो AC है, बाकी सब क्लासेस नॉन AC है। लैब AC है, कंप्यूटर लैब। बाहर जाने के इश्यूज़ है थोड़े से बिकॉज इट्स नॉट अलाउड बाहर जाना। फॉर बॉयज़ इट इज़ लाइक प्रॉक्टर एंड पेरेंट्स को इन्फॉर्मेशन जाएगा, एंड फॉर गर्ल्स इट इज़ वार्डन एंड पेरेंट्स टू टेक, write a letter and give to warden and then approve it and then you can go outside, the proper reason. So these are the few things I faced. Also exams are very hard, like मेरे लिए बहुत बुरा जा रहा है। बहुत पढ़ना पड़ रहा है, कुछ याद नहीं रह रहा बिकॉज आई फॉरगॉट हाउ टू रिमेंबर थिंग्स। एंड हमें जाना पड़ता है, सेंटर आ जाता है एंड वी हैव टू गो देयर, सिट, राइट द एग्ज़ाम, कम बैक, walk a lot. That's it I will say about the video. बाकी अंदर खाने की बहुत सारी जगह है, FC, DC, DR, बहुत सारी खाने की जगह है। डोमिनोज बंद है, नेस्कैफेज़ है। गर्ल्स हॉस्टल के अंदर फ्लोरल कैफ़े है और आंटीज़ किचन है, एंड द बॉयज़ हॉस्टल देर इज़ एनजो एंड मैनी अदर, आई डोंट नो एग्जैक्टली। सो वहाँ पे यू कैन ईट, हैंग आउट विथ योर फ्रेंड्स एंड the thing is about PDA. So in the initial stages they are not so strict, but as the time goes on they become strict. They are reluctant to holding hands, putting hands on shoulders, and even doing any nuisance in the road or anywhere in the academic buildings or anywhere in the campus. So beware about them and try not involving in PDA, because then it will be a big task to get your iCards from them. So yeah, it's very strict here. Initially you will not find that much strictness, but as the time goes on you will see the actual results. So
So that's it for the video, guys. I tried to cover each and every part of my VIT tour, like VIT experience till now. So even if you have any doubts after that, you can surely DM me or put down in the comment section so that I can answer you as soon as possible. Thanks for watching this video. Like, share, and subscribe to my YouTube channel. Bye bye.